हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज number of field lines passes through the surface. Even field lines are the imaginary curves, but if we imagine some field lines passes through the surface, then we can say flux passes through this surface. For example, if number of field lines are same, then flux will be same. Electric flux जो सबसे पहला definition है, number of field line pass through surface. It means suppose some field lines are like this. We assume some surfaces, like one surface is this, another surface is this, this surface is 1, this surface is 2, similarly this is 3 surface, 3 number, okay, and this is 4 number, and so on. Then flux passes through, electric flux defined by phi, then electric flux passes through 1 and 2 are equal, because from the one surface 1, 2, 3, 4, 5 lines passes, and for two surface 1, 2, 3, 4, 5 line passes. If field lines are equal, then flux will be same, is greater than phi 4, because from 4 surface only 3 field lines passes, then phi 3 only 3 field line surfaces. If more field lines passes, then flux will be more. Okay, if field lines are equal, then flux will be equal. Okay, first definition is this. But field lines are imaginary lines, so how we can counting them, since field lines are imaginary? If we assume 20 lines, you can assume 40 lines. If we assume 10 lines, you can assume 15 lines. Then how we can analyze such imaginary lines? But if field lines are given like this, then only we can explain electric flux. So mathematically electric flux defined as electric flux is defined as dot product of electric field and surface area. Dot product of electric field and surface area. ds surface area vector. Okay, and its direction taken as outward normal. Its direction taken as outward normal. Phi equal to E dot ds. Its unit will be, E means Newton per Coulomb and area meter square, or volt per meter into meter square, so we also written as voltmeter. Okay, if electric field is uniform, suppose electric field become uniform, if E is uniform field means neither magnitude change nor direction change, then phi will become E dot integration ds, that is E dot s. Its mean, or phi equal to Es cos theta. Like this is surface area, outward normal is this,
electric field lines goes in this direction, angle is angle is theta, then flux defined as E as cos theta. Theta is the angle between electric field lines and area vector, and direction of area vector taken outward normal. Suppose for this board area vector direction is outward normal. Okay, so if theta equal to 90 degree, 90 degree means suppose surface is this, direction of this, if field lines are goes like this, then angle will be pi by 2. then ये क्या implies करेगा, phi equal to E as cos 0, that is E as cos pi by 2, that is flux become 0. Okay, flux become 0. Now flux will be either incoming or outgoing flux. Incoming flux or outgoing flux. Incoming flux means suppose this is surface area and field lines are entered like this. These are the field lines and direction of area vector like this. So flux will be angle between E and N cap greater than 90. So greater than 90 means in the second quadrant cos will be negative. So phi will become negative, E as cos theta. And outgoing flux means suppose surface is like this and field lines goes and area vector, so its angle in this case theta greater than 90 degree, so become negative, or in this case theta less than 90, so flux will be positive, E as cos theta. So always remember incoming flux taken as negative and outgoing flux taken as positive. Okay, since flux is scalar quantity, so we should know about positive or negative sign. Suppose in any question if data is given like incoming flux is 20 and outgoing flux is 30, incoming flux means flux is minus 20 and outgoing flux is 30 means outgoing flux equal to plus 30. Okay, so incoming flux taken as negative and outgoing flux taken as positive. Now see one example. An example is if a circular disc of radius 1 meter lie in the xy plane and electric field 2I plus 3J Newton per Coulomb exists in space, then calculate electric flux passes through it. Then calculate electric flux passes through it. It's mean, see this example. Suppose this is circular disc. If circular disc lie in the xy plane, then it's normal in the z direction. If plane in the xy plane, and then it's normal in the z direction. Okay, and electric field exists in the xy plane, so area vector can be written as pi r square, and
direction of area vector taken along normal to the plane, outward normal. So pi r square k cap, and electric field area vector A or S, and electric field is given 2I plus 3 है. Flux is E dot dash in dot product coefficient of I multiplied by I. Here there is no I, so 0, J multiplied by J, and K multiplied by K. Here K, but here there will be no K, so flux will be 0. Okay, so flux become 0. Now see one very important formula, though we cannot drive here because this lecture is just review lecture. This lecture is based on your revision class or as per crash course. Okay, so you remember only formula, and formula is electric flux passes through cone if a point charge Q is placed at its vertex. Point charge Q is placed at its vertex. See, suppose this is cone. A point charge Q is placed this. Field lines goes due to point charge like this. Field lines goes like this. Some of field lines like this, and only few lines can enter in this cone. These lines will not contribute in flux because they do not passes through the cone. So only few lines like this passes through the surface. So if semi-vertex angle means, suppose this angle is theta or alpha, whatever you can say, alpha equal to semi-vertex angle. So flux of cone equal to flux of curved surface plus flux of base or plane surface. Curved surface flux, see, it's normal always perpendicular to these field lines, and these field lines cannot contribute in flux. Only these field lines can contribute, but field lines passes along the surface and normal perpendicular to the surface, so angle become 90. So phi curved surface will be 0, and plane surface is Q by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha. So in calculating the flux passes through the cone is flux passes through the curved plus base. Flux passes through the curve will be 0 and base will be this. So phi cone equal to Q by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha. This is very important result. So that's just you remember it. Okay, Q by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha. Suppose now our question is this:
suppose this is a square plate, square plate of side A. Calculate electric flux passes through plate if a point charge placed at one of its corner. तो हम लोगों को ये चाहिए कि यदि कोई पॉइंट चार्ज को इसके किसी एक कॉर्नर पे रख दें तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा. सीधा एग्जाम्पल, suppose here we put a point charge, then feed lines goes like in 3D form. पॉइंट चार्ज जो फीड लाइंस जनरेट करेगा इन द रेडियल डायरेक्शन ऑफ ए स्फीयर होगा. तो इधर जो फीड लाइंस जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा फ्लक्स में. जो नीचे जा रहा है वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. फीड लाइंस इसके फ्लक्स में वो कंट्रीब्यूट करेगा व्हेन फीड लाइंस पासिस थ्रू द सरफेस. पासिस थ्रू मीन्स फीड लाइंस यदि कोई ऐसे जाके ऐसे इंटर करे, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है. most of the feed lines which goes in this direction cannot be contribute. जो डाउन साइड जाएगा वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, अप साइड जाएगा वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. इनमें से फ्यू फीड लाइंस क्या होंगी? फ्यू फीड लाइंस goes like along the surface. Few feed lines goes like along the surface, but normal is perpendicular to the surface. So flux will be 0 because E dot ds 0, angle become 90 degree, or we can say there will be no feed lines passes through the surface. These lines are grazes the surface. ये सरफेस को छूते हुए जा रहे हैं, पास नहीं हो रहे. पास होने का मतलब आर पार हो जाना, इससे इंटर करे, इस साइड से निकले. तो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि ये फीड लाइन सरफेस को छू के थोड़ी निकली, तो बाहर निकल गई. यहां से जो क्या कर रहा है वो ग्रेज करते हुए जा रहा है. इसका मतलब हुआ कि व्हेन पॉइंट चार्ज प्लेस्ड हियर देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, few of field lines goes like this, they cannot contribute any flux, and some of field lines goes like this. These lines grazes the surface and normal become 90 degree. So flux will be क्या होगा? Flux will be 0 since no field line passes through surface. सरफेस को पास नहीं कर रहा है, ओनली क्या कर रहा है? ग्रेज कर रहा है, छूते हुए जा रहा है, टच करते हुए जा रहा है. तो टच करने से नहीं होता है, क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए. ओके. इसके अलावा क्या है? मान लीजिए हम इसके सरफेस पे न रख के, मैं कहता एक कॉर्नर पे न रख के, मैं कहता सेंटर पे रख दें. तो सेम कंडीशन इधर, यदि हम सेंटर पे चार्ज रखते तो ऊपर वाला फील्ड लाइंस ऊपर निकल जाता, नीचे वाला नीचे निकल जाता. तो पास तो नहीं होता. पास होने का मतलब जैसे कोई फील्ड लाइंस गया और ऐसे इंटर कर गया, वैसा तो कुछ होना नहीं है. आइसोलेटेड चार्ज है तो सिर्फ क्या करेगा? रेडियल डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जाएगा. तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस वाले केस में भी फ्लक्स कितना आता? 0 आता. अब हम लोग गॉस लॉ, तो इससे रिलेटेड गॉस ने एनालिसिस करी और उन्होंने कहा कि फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस. एनी क्लोज सरफेस मीन्स सिमेट्रिकल or asymmetrical. Flux passes through any closed surface will be Q inside by epsilon naught. इन्होंने कहा कि phi closed surface must be closed. सरफेस यदि क्लोज नहीं है, ओपन है, तो उसमें हम गॉस थ्योरम नहीं अप्लाई कर पाएंगे. इफ सरफेस इज क्लोज then phi close equal to Q inside by epsilon naught means close phi means flux
is E dot ds. And how we can differentiate between flux and flux passes through a closed surface. So here apply a circular sign. It means electric flux for closed surface. So circular integration equal to Q inside by epsilon naught. Q inside by epsilon naught. So see example. Suppose here some charges are placed. Here charge minus Q1 and this surface is S1. Here charge placed Q2 and this surface is S2. Here charge placed S3 and this here charge is Q3 and this surface is S4. Then flux passes through S1. Since surfaces are closed, so we can apply Gauss law. If surfaces क्लोज नहीं होते तो गॉस लॉ नहीं अप्लाई कर सकते थे. तो ये क्या होता है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इस S1 सरफेस के अंदर जो चार्ज है, बाहर कितना कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट. 5S2 इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, देयर विल बी नो चार्ज, सो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट. इनसाइड चार्ज लेना है. 5S3 ये सरफेस यहाँ पड़ा हुआ है, चार्ज भी आउटसाइड है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी कितना होगा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट. एंड 5S4 इसमें भी क्या है, S4 इज दिस चार्ज, तो इनसाइड चार्ज इज माइनस Q1 एंड प्लस Q2, माइनस Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट. In this surface, see in this surface inside, this charge inside, this surface inside, this is outside, so only inside charge is taken, so inside charge is total, inside the S4 is minus Q1 plus Q2, so flux can be calculated by this. Now question is this, suppose there is a bowl or we can say cup of tea. A point charge Q is placed at its center. If Q placed at center of open surface of cup, then calculate electric flux passes through it. Since surface is opaque, so we cannot apply Gaussian theorem or Gauss law, and we cannot apply E dot ds because here electric field is not given and dimension of cup is not given. So how we can calculate area vector? Suppose dimension is given, then still problem creates because angle will be different for different field lines, तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है. इसी डिफिकल्टी से बचने के लिए हम गॉसियन थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो गॉस में क्या होता है कि सरफेस मस्ट बी क्लोज, तो सरफेस मस्ट बी क्लोज मीन्स अब ये तो ओपन है, तो हम इसको क्लोज कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर प्लेट रख दीजिए आप, इसके ऊपर पेपर रख दीजिए, क्लोज हो जाएगा. तो गॉस अप्लाई तो कर लोगे आप, लेकिन आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग शायद ना आए. तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम सिमेट्रिकल सरफेसेस को ढूंढेंगे. सिमेट्रिकल से क्या होगा, हम लोगों को ये आइडिया लग जाता है ना कि इससे इतना होगा तो इससे इतना होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है. तो स्केलर क्वांटिटी में कहते हैं कि सपोज 1 बनाना 2 रुपीज का आता है तो 2 बनाना 4 रुपीज का आएगा. बिल्कुल उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो इसलिए क्या है कि हम कोशिश करेंगे सिमेट्री से कवर. पर गॉस लॉ का मतलब ये नहीं है कि सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए मैंने लिखा हुआ है गॉस थ्योरम
किसके लिए होना चाहिए? क्लोज सरफेस के लिए है। सरफेस में बी सिमेट्रिकल और में बी असिमेट्रिकल। लेकिन जब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है तो हम अपने कंफर्ट के लिए सरफेस को कैसा रखते हैं? सिमेट्रिकल रखते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बैठ जाता है। लेकिन सरफेस कैसा भी होगा तो गॉसियन सरफेस चलेगा। अभी इसके प्रीवियस एग्जाम्पल हमने बताया, अमीबा जैसा केस बना दिया, तो उसमें भी तो हमने गॉसियन सरफेस अप्लाई कर दिया था, क्लोज सरफेस था। तो क्लोज के लिए वैलिड इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सरफेस ओपन है, क्लोज हम कैसे भी करेंगे गॉसियन सरफेस अप्लाई हो जाएगा। लेकिन बेहतर होगा कि हम लोग इसको किससे करें? सिमेट्रिकल सरफेस से। तो सिमेट्रिकल सरफेस मीन्स हम क्या करें? हम इसी तरह का, जैसे ये कप है, इस कप में हमने आपको बोला कि ये कप है और इसके सरफेस पर हमने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है यहाँ पे, तो क्यों ना इसको हम ऐसे ही एक दूसरे कप के साथ इसको कवर कर दें। इसको हम दूसरे कप के साथ ऐसे कवर करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? लेट फ्लक्स पासेस थ्रू वन कप इज 5, तो 5 क्लोज विल बी 2 5, and 5 close by Gauss theorem q by epsilon naught. Q means q inside charge is q, so 5 become q by 2 epsilon naught. So flux passes through one cup is 5 and 5 will be q upon 2 epsilon naught. Similarly, see another example. An example is this. Suppose this is Q and point charge Q is placed at center of Q. Q is placed at center of Q. If then calculate flux passes through the Q and B, first flux passes through the Q and next flux passes through one of the phase. तो 5 cube is charge anyway, then 5 cube will be 5 cube already closed, so 5 cube equal to 5 close, and 5 close is q inside by epsilon naught, so answer will be this, already cube is closed. And B part, flux passes through one of the phase, charge placed at center of the cube and all 6 faces of the cube are symmetrical with respect to center. So if flux phi passes through one surface or one face, then total flux of the cube become 6 phi, and total flux here q by epsilon naught. So let flux passes through one phase is phi, then phi cube will be 6 phi, and phi cube already closed, calculated q by epsilon naught, so phi become q by 6 epsilon naught. Okay, q by 6 epsilon naught. Now we start application of गॉस लॉ. ओके, तो जब हम गॉस लॉ का अप्लाई करेंगे, मीन्स गॉस में ये तो देख लिया कि जो बेसिक डेफिनेशन है वो फील्ड लाइंस कितना पास होता है, जो काउंटिंग कर पाना मुश्किल काम है क्योंकि दी जाता है इमेजिनरी कर्व्स. तो दूसरा मेथड हमारे पास आया ई डॉट डी एस. हम अप्लाई करें तो हम लोग ई डॉट डी एस अप्लाई करके सॉल्व करते हैं फ्लक्स. तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सरफेस एरिया आया इक्वल टू फ्लक्स. अब कुछ ऐसा हो जाए कि सपोज हम लोगों को फ्लक्स पता हो,
सपोज हम लोगों को क्या हो, फ्लक्स की जानकारी हो, सरफेस एरिया की जानकारी हो और फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉसियन सरफेस और गॉस थ्योरम वी कैन अप्लाई। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि यदि हमें गॉस थ्योरम से और गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, देन गॉसियन सरफेस मींस, देखो वैसे तो हमने बताया कि गॉस लॉ आप किसी में भी अप्लाई करो, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल में, वो तो फ्लक्स के लिए बात हो गई। लेकिन यदि हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं किसके लिए, फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब कुछ लिमिटेशंस आ गई। तब क्या कंडीशंस आ गई कि सरफेसेस को हमें बिल्कुल पर्टिकुलर अजम्पशन लेके ही कंसीडर करना पड़ेगा। यदि हम गॉसियन थ्योरम से या गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस मींस क्लोज सरफेस, जो भी आप इमेजिन करते हैं, रियल थोड़ी है वो, तो जस्ट इमेजिन करना है। इमेजिन कैसे भी करो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में इसको हमने कवर कर लिया, क्यूबिकल फॉर्म में इसको कवर कर लिया इस चार्ज को, तो ये जो एजम्पशन होगा इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो गॉसियन सरफेस हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के हर पॉइंट पर या तो टेंजेंशियल हो, तो टेंजेंशियल होगा, और नॉर्मल तो सरफेस के होता ही है परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो फ्लक्स हमेशा कितना देगा, 0 देगा। मतलब गॉसियन सरफेस को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हर पॉइंट के कैसे हो, या उसका कैसा हो, टेंजेंशियल हो, या फिर ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कैसा हो, नॉर्मल हो। हाँ, लेकिन यदि नॉर्मल हुआ तो उसके हर पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड सेम कब हो सकता है, जैसे हम पॉइंट 4 से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, कितना था फॉर्मूला, KQ/R² था ना। तो KQ/R² जो फॉर्मूला था, तो यदि R डिस्टेंस बराबर होगा तभी तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब बताइए, जब डिस्टेंस बराबर रख लेंगे सबसे, तो सरफेस कैसा बन जाएगा, सिमेट्रिकल बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए गॉसियन सरफेस जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में लेते हैं, वो सरफेस सिमेट्रिकल होता है। पर ये मत सोचो कि गॉसियन सरफेस मींस गॉस लॉ सिमेट्रिकल के लिए होता है, गॉस लॉ नहीं, गॉस थ्योरम तो सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल दोनों के लिए होता है। क्योंकि गॉस थ्योरम ये थोड़ी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, गॉस थ्योरम तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो गॉसियन क्लोज सरफेस के लिए, तो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यदि हमें उससे अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में, तो जो गॉसियन सरफेस हम सिलेक्ट करेंगे वो ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सिर्फ ओनली टेंजेंशियल बने या ओनली नॉर्मल बने। ये नहीं आप सोचो कि किसी एंगल पर बन रहा, हमने कंपोनेंट कर लिया, टेंजेंशियल भी बन गया, नॉर्मल भी बन गया। कहने का मतलब यदि ये गॉसियन सरफेस आया, ये जैसे गॉसियन सरफेस हमने कुछ भी ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सिर्फ नॉर्मल बने या फिर कैसे बने, सिर्फ टेंजेंशियल बने। ऐसा ना हो कि ये तो चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, तुमने तोड़ लिया इसको कि एक कंपोनेंट इधर आ गया E cos थीटा और इधर क्या हो गया E sin थीटा, तो इसमें तो दोनों बन जाएंगे, तो दोनों नहीं लेना, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो गॉसियन सरफेस हमें ऐसे सिलेक्ट करना है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ नॉर्मल हो या सिर्फ टेंजेंशियल हो। हाँ, टेंजेंशियल होगा तो कैसे भी चलेगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, वेरिएबल सब चलेगा। लेकिन यदि नॉर्मल हुआ तो उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेम तभी होगा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम तभी होगा जब वो सरफेस कैसा होगा, सिमेट्रिकल। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए गॉस लॉ में सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं, पर कैलकुलेशन में जब हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए जरूरी नहीं, फ्लक्स के लिए कैसा भी क्लोज सरफेस होगा सबके लिए वैलिड होगा। तो जब हम इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि फाई क्लोज जो भी आप लिखोगे वो क्या होगा, सर्कुलर E.ds, और इससे फ्लक्स कैलकुलेट करोगे आप, और उससे हम लोग फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और ये E.ds इसी से क्या बन जाएगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों रिलेशन को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, Q कैलकुलेट करेंगे। तो इस Q के बेसिस पर हम एप्लीकेशन स्टार्ट करें, तो इसके जो डेरिवेशन आते हैं उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला केस किसके लिए ले रहे हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फीयर है ना, और कंडक्टर और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग की क्या बात होगी? कंडक्टिंग में ये हो जाएगा कि कंडक्टर जो होगा उस पर आप कितना भी चार्ज दो, सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। तो जब सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, इसलिए उसके लिए बात करें तो जो इसके लिए, जैसे ये स्फीयर है, या तो ये नॉन कंडक्टिंग होगा तो यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, अदरवाइज ये कंडक्टर होगा तो वो अपने आप से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और सारा चार्ज आएगा सरफेस पर। तो जब सारा चार्ज सरफेस पर आएगा, इसके सेंटर से इसका दूरी r है, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा वो होगा 0, मतलब इनसाइड फील्ड कितना 0, जब x का वैल्यू r से कम, और KQ/r² KQ/x² जब x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन r। इसका मतलब हुआ ग्रेटर इक्वल देन r मीन्स हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बाहर तो होगा लेकिन अंदर नहीं होगा, और आउटसाइड के लिए आपको ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए पॉइंट चार्ज के लिए भी तो होता है KQ/x², तो उसी तरह से आप एज्यूम करो, यदि हमें आउटसाइड चाहिए तो हम एज्यूम करेंगे कि सारा चार्ज कहाँ रखा है? सेंटर पर। तो जो इसका ग्राफ बनेगा x और e का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका बन रहा है वो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखो पहले 0 है तो इधर 0 कहाँ तक? x = r तक। फिर ये ग्राफ क्या हो जाएगा? चेंज होके मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे कितनी आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी ये वैल्यू KQ/r²। भाई ग्रेटर इक्वल देन r है तो r रखोगे तो KQ/r² हो जाएगा। उसके बाद प्रोपोर्शनल टू 1/x², इसका मतलब डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो ऐसे इनफाइनाइट पे जाके कितना होगा? 0। सेम कंडीशन इधर, लेफ्ट की बजाय आप राइट की बजाय आप लेफ्ट साइड चलोगे तो इधर भी फील्ड कितना होगा? 0 होगा, तो फील्ड 0 हो जाएगा। तो फील्ड 0 जब यहाँ पे हुआ तो इधर भी फिर वही कंडीशन, ये -r और वैल्यू KQ/r², डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब इधर राइट साइड है तो इधर लेफ्ट साइड, और इसके बाद फिर ग्राफ कैसे चलेगा? इस तरह से चलेगा, है ना। तो यहाँ पे x = r पे क्या होता है? x = r और -r पे क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूटी होती है। अच्छा, इसी तरह पोटेंशियल जब आप लिखोगे तो पोटेंशियल का वैल्यू इनसाइड जो होगा वो KQ/r, मतलब सरफेस के बराबर, कब? जब x का वैल्यू r से कम हो, और आउटसाइड के लिए लिखते हैं KQ/x जब x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन r। मतलब अंदर पोटेंशियल 0 नहीं होता, अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जो सरफेस पर होता है, इसलिए BS लिख दिया। BS बोले तो सरफेस, KQ/r होगा सरफेस पर, और आउटसाइड KQ/x। तो इसका जब ग्राफ बनाया जाएगा, जब हम इसको ग्राफ में बनाए, अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, x और b का ग्राफ बनाए, तो देखो पहले पोटेंशियल कांस्टेंट है, कहाँ? सरफेस तक, तो सरफेस का मतलब यहाँ तक, यहाँ पोटेंशियल ऐसे कांस्टेंट रहेगा x = r तक। उसके बाद प्रोपोर्शनल टू x, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चलेगा, तो आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पे x = r पर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस तो है पर नॉन डिफरेंशिएबल है। देखो स्लोप चेंज हो रहा है ना। इसी तरह इधर चलो तो ये तो इस वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए मैग्नीट्यूड इधर भी ऐसे ही चलेगा, और ये कहाँ तक? -r तक, और इसके बाद फिर से क्या करेगा? इस तरह से डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद इस तरह से डिक्रीज करेगा। तो जैसे हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इसके अंदर 0 होता है लेकिन पोटेंशियल उतना होता है जो सरफेस पर, और आउटसाइड के लिए चाहे फील्ड कैलकुलेट करना हो या आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, आप एज्यूम करो कि सारा चार्ज कहाँ रखा है? सेंटर पर रखा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से यदि आप कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब हुआ कि
हर जगह इस पॉइंट मीन्स जो चार्ज है उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर है, वो कंडक्टर में नहीं हो सकता। कंडक्टर में क्या होता है कि तुम चार्ज कहीं भी रखोगे सारा का सारा तुरंत सरफेस पे आ जाता है, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है जहां मटेरियल है वहां पे हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूट है। ये तभी पॉसिबल है जब कंडक्टर जो हो, सॉरी जो भी स्फीयर जो बॉडी है वो इंसुलेटर हो, मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हो। तो जब कभी लिखा जाएगी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या कहीं पर भी कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हुआ कि वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि रॉड के ऊपर चार्ज है, हमने पोटेंशियल निकाला या फिर हमने उसमें फील्ड कैलकुलेट किया था या फोर्स कैलकुलेट किया था, तो वो जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इसका मतलब वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल था। यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट वर्ड यूज कर दिया हमने, इसका मतलब वो चार्ज कैसा है, वो जो रॉड है जो मटेरियल है वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में जहां रख दोगे चार्ज वहीं रखा रह जाता है। तो इसी तरह से ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब नॉन कंडक्टिंग, स्फीयर का मतलब होता है सॉलिड, तो इसके हर पॉइंट पर चार्ज होने का मतलब सब जगह चार्ज होगा ऐसे। तो जब हर जगह चार्ज होगा तो इसके लिए इसी तरह से डेरिवेशन करते हैं गॉस लॉ से। तो जो अंदर फील्ड आता है वो होता है के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, मीन्स अंदर कितना के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, तो के क्यू एक्स बाई आर क्यूब इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू एक्स और आउटसाइड वाई होगा। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनेगा, जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएं, इसी में हम चेंज कर रहे हैं है ना, तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा कि ये एक्स है और ये फील्ड है। तो इनसाइड देखो क्या है, इनसाइड है प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन चलेगा। कहाँ तक चलेगा, जब तक कि आर ना आ जाए, और उसके बाद फिर ऐसे डिक्रीज करेगा। सेम कंडीशन इधर है, ऐसे चलेगा और कब तक, जब तक कि आर ना आ जाए, तो ये माइनस आर तक होगा। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब पोटेंशियल की बात आती है तो इसका जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लिखोगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो इनसाइड होता है के क्यू अपॉन टू आर क्यूब, ये 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए और जेई मेन एग्जाम के लिए, ठीक है ना। डेरिवेशन तो अभी रेगुलर क्लास होता है तो बताया जाता है, पर आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो के क्यू बाई टू आर क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू लेस देन आर के लिए, और के क्यू बाई एक्स ये सिमिलरली वही, मतलब आउटसाइड के लिए तो आपको एज्यूम करना पिछले केस में भी इस केस में भी कि सारा चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पर, तो ग्रेटर इक्वल देन आर। अच्छा ए बनाया साथ में सेंटर पर, यानी एट सेंटर, सेंटर तो इनसाइड होता है, तो इनसाइड के लिए x इक्वल टू 0 रखोगे, तो जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी 3/2 के क्यू बाई आर, और के क्यू बाई आर होता है सरफेस पर पोटेंशियल, तो सरफेस का कितना 3/2 टाइम्स होता है, 3/2 टाइम्स। और जब इसका ग्राफ बनाया जाए, कि हम इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं, सपोज कि x और पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं, तो पोटेंशियल कहाँ पर सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल जो है वो कहाँ पर ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है सेंटर पर, और तो इसलिए ग्राफ ऐसे चलेगा, पहले ऐसे चलेगा कहाँ तक, आर तक, और फिर इसके बाद ऐसे चलेगा। तो देखो यहाँ पर ग्राफ ये जाके कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट। देखो यहाँ तक अभी तुमको एक जैसा ग्राफ लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो पोर्शन है ये बताएगा पैराबोला को, और ये वाला जो पोर्शन है ये बताएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बताएगा। सेम कंडीशन इधर, इसी का मिरर इमेज इधर आ जाएगा, तो इस तरफ ग्राफ बनाओगे आप, तो ये भी क्या चलेगा पोटेंशियल में ऐसे, कहाँ तक, माइनस आर तक, और इसके बाद फिर से कैसे चलेगा, इसी तरह से। तो इतना पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, पैराबोला का, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसी तरह से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज सरफेस, ठीक है। यूनिफॉर्मली कह दिया तो नॉन कंडक्टिंग हो गया बेटा। तो जब नॉन कंडक्टिंग है, इस तरह से कोई लार्ज चार्ज सरफेस होगा, बहुत बड़ा, जैसे प्लेन हो गया, तो इसका जो सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा क्या होता था, Q अपॉन ए, मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो इसका वैल्यू होगा E बराबर, इसका फॉर्मूला सिर्फ, ये सब डेरिवेशन से आता है, अभी तुमको सिर्फ इतना याद रखना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो इसका ग्राफ बनेगा x के साथ E का, वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये डिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, कितना दूरी पर है, चाहे इससे आप 20 सेंटीमीटर पे निकालो, चाहे 2 cm पर, चाहे 5 cm पर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और बाकी सुपर पोजिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पता कर ही सकते हैं, है ना। सबको क्या करेंगे, सम करेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, तो और वायर, तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड और वायर होगा, इसको हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनफाइनाइटली लॉन्ग के केस में ये, और इस E का वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या वहां पे हमने लिखा था 2k लैम्डा बाई r। ये डिस्टेंस कितना है, r, k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल करोगे तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें E प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसका जो ग्राफ होगा E का और r का, वो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चलेगा, है ना। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में, जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लिया, सपोज ये कोई थिन स्फेरिकल सेल चार्ज विथ Q1, Q2 and Q3. Its radius is R1, R2 and R3. This point is O, this point is A, this point is B, this point is C and this point is D. Okay, and suppose surface name of this S1, S2, S3. एग्जाम्पल ये है, ये 3 concentric charged conducting cells, charge conducting thin spherical cell, ये दे रखे हैं। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करना चाहें, ये हॉलो स्फीयर हो गया ना, हॉलो सेल मतलब हॉलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, सपोज O पर, और सपोज ये डिस्टेंस दे रखा है, लेट OA A, OB B, OC C एंड OD। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो हम सुपर पोजिशन में सबकी वजह से निकालेंगे। तो इसका खुद की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, सेल्फ की वजह से, फर्स्ट की वजह से निकालो 0, सेकंड की वजह से, सेकंड के भी तो इनसाइड पॉइंट हो गया ना, फर्स्ट के इनसाइड तो सेकंड के भी तो इनसाइड है तो 0, थर्ड के भी क्या हुआ, इनसाइड। क्यों, क्योंकि हमने थिन स्फेरिकल सेल की वजह से फील्ड कितना बताया था आपको, इनसाइड 0 होता है, तो फील्ड 0 हो गया फाइनली। ए पॉइंट का भी सेम कंडीशन है, ए भी तो क्या होगा, फर्स्ट के इनसाइड, सेकंड के इनसाइड, थर्ड के इनसाइड, तो कितना हो गया, तो फील्ड एट O एंड A आर सेम।
Similarly now electric field at B point. B point is outside of first. For outside field, we assume this charge Q1 is placed at O. Then if Q1 assumed to be placed at O, then separation between OB become A, OB become B. So field is KQ1 by B square. While B inside of second sphere, so 0, and inside of third sphere, so again 0. So result is KQ1 by B square. Now EC, C point outside of first one, outside of second one. So for first, KQ1 by C square, KQ2 by C square. But for third spherical cell, C point inside, so it will become 0. Now ED, D point outside of first, so KQ1 by D square. Outside of second, so KQ2 by D square, and outside of third, so KQ3 by D square. Now start potential. तो पोटेंशियल थिन स्फेरिकल सेल के लिए क्या बताया था? इनसाइड पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पर होता है. तो इनसाइड पोटेंशियल एट O, फर्स्ट का सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ1 बाई R1. एंड सेकेंड के भी इनसाइड हुआ, तो इसका अपने सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? KQ2 बाई R2. थर्ड स्फेरिकल सेल के भी इनसाइड हुआ पॉइंट, तो फिर इसके अपने सरफेस पर सेल की वजह से क्या होगा? KQ3 बाई R3 हो गया. सिमिलरली A पॉइंट ऑल्सो इनसाइड, सो VA. ओके. नाउ B of B. B point is outside of first one, तो for outside KQ1 by B, but inside of second. इनसाइड के लिए पोटेंशियल सरफेस पर निकालते हैं, तो KQ2 by R2 एंड KQ3 by R3, क्योंकि ये इसके भी इनसाइड हुआ. एंड पोटेंशियल एट C, आउटसाइड ऑफ फर्स्ट, सो KQ1 by C, आउटसाइड ऑफ सेकेंड, सो KQ2 by C, एंड inside of third, तो KQ3 by R3. Now BD, outside of first, outside of second, outside of third, सबका चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट कराओ, एज्यूम करो, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 by D, बिकॉज KQ1 by D, KQ2 by D, KQ3 by D. इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ इंडक्शन ऑफ चार्ज in conducting plates. Induction of charge in conducting plates. Suppose there are so many plates, 1, 2, 3, 4 and so on up to n. Suppose charge on this plate is given Q1, Q2, Q3 and so on Qn. These plates are conducting, so induction यहाँ पर हो जाएगा. और उस इंडक्शन के लिए हम कैसे चार्ज स्टार्ट करें? हम लेफ्ट सरफेस से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए इस पे चार्ज कितना हमने माना प्लस Q है, तो सबसे पहले आप प्लस Q का वैल्यू निकालोगे. अब प्लस Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे ये चार्ज कितना मान लिया हमने, हम ये माने कि लेट आफ्टर इंडक्शन चार्ज ऑन लेफ्ट सरफेस ऑफ फर्स्ट प्लेट बिकम Q. देन Q, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना. और वो क्या है? Q इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस.
Q1 plus Q2 plus Qn एंड डिवाइडेड बाई 2। और जैसे ही हमने ये चार्ज कैलकुलेट कर लिया, तो जैसे ये चार्ज कैलकुलेट कर लिया, बाकी हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको स्टडी कर सकते हैं। और जो सरफेसेस होते हैं उन पे जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट, जैसे जो चार्ज इस पे होगा उतना ही इस पर होगा, पर यदि इस पे प्लस है तो इस पर माइनस, इस पे माइनस होगा तो इस पे प्लस होगा। तो तुमने लेफ्ट सरफेस का चार्ज मान लिया कि कितना है, Q। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इससे अब हम लोग सॉल्व करें। तो हम एग्जाम्पल इसके देखते हैं, तो उससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर C एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन, है ना। ये हमने पहले बता दिया कि ये सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सेपरेशन कम हो या ज्यादा हो। तो ऐसे हमने कुछ प्लेट्स ले लिए। तो एग्जाम्पल में सपोज इसका चार्ज 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, ऐसे कुछ भी चार्ज ले लिया। तो अब इंडक्शन के बाद चार्ज स्टार्ट करना है। सपोज वी एज्यूम charge on left surface of first plate is Q, then Q can be calculated. There are 4 plates, 1 2 3 4, तो Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 divided by 2 only. Start. Q1 means 1 plus 2, Q1 plus Q2 plus Q3, but minus, so minus, plus Q4 divided by 2. It means 2 माइक्रोकूलम। ओके, 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब है कि इस पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। अब जब आपको पता चल गया कि इस Q का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, इट्स मीन Q इक्वल टू 2। इस पर देखो टोटल चार्ज कितना दे रखा है हमने, 1। अब 2 इधर आ गया तो इस पे कितना होना चाहिए बैलेंस करने के लिए, इस पर चार्ज होना चाहिए था -1 माइक्रोकूलम। सिंस total amount of charge given is 1 microcoulomb, if 2 microcoulomb creates on left surface, then on right surface due to conservation of charges on the right surface value of this charge must be -1। अब ये -1 हो गया तो इंडक्शन से चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए क्या होगा +1 माइक्रोकूलम। अब इस पर प्लस हो गया, टोटल चार्ज इज 2, तो 1 इधर आ चुका है, तो अब इस पे कितना होना चाहिए था, इस पर भी इधर 1 माइक्रोकूलम। फिर जो आमने सामने वाले सरफेसेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो ये 1 माइक्रोकूलम है, तो इस पे चार्ज क्या होना चाहिए -1 माइक्रोकूलम। अब इस पर -1 माइक्रोकूलम हो गया, टोटल चार्ज इज -3। सो ऑन दिस सरफेस चार्ज विल बी -2 माइक्रोकूलम। देन अगेन आमने सामने वाला सरफेस, इस पे -2 है, तो इस पे कितना आना चाहिए +2 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज 4, सो रेस्ट अमाउंट कम्स ऑन दिस सरफेस 2 माइक्रोकूलम। नोटिस ऑलवेज कोई भी प्रॉब्लम बना रहे, सरफेस ऑन लेफ्ट सरफेस ऑफ फर्स्ट एंड राइट सरफेस ऑफ लास्ट विल बी इक्वल टू Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम प्लस का, तो इस पर भी कितना आएगा 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, लेकिन चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। सपोज देर आर ओनली 2 प्लेट्स, चार्ज ऑन दिस 2 माइक्रोकूलम एंड ऑन दिस 2 माइक्रोकूलम -2। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट सरफेस ऑलवेज। तो लेफ्ट सरफेस से स्टार्ट करो, तो Q इक्वल टू क्या होगा Q1 plus Q2 by 2, that is 2 minus 2 by 2, that is 0। तो चार्ज ऑन दिस विल बी 0। तो Q इक्वल टू जब 0 आ चुका है, तो टोटल 2 था, तो 0 इस तरफ, तो इधर कितना चला गया 2 माइक्रोकूलम। ये आमने सामने वाला अपोजिट फेसेस है, तो 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए -2 माइक्रोकूलम। अभी -2 माइक्रोकूलम सारा का सारा इधर आ गया, तो इस पे कितना आ जाएगा 0, इस पर भी 0 और इस पर भी 0, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज देर आर 3 प्लेट्स लाइक दिस। सपोज 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट सरफेस, सपोज चार्ज ऑन दिस सरफेस इज Q, then Q
इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई 2, that is 3 microcoulomb. Okay, 1 plus 2 plus 3 by 2, 3 microcoulomb. See, if Q is 3 microcoulomb, then on this surface total charge is 1 microcoulomb. So on this surface charge must be minus 2. If charge is minus 2, then in this opposite face it should be plus 2. टोटल चार्ज 2 माइक्रोकूलम, यहाँ प्लस 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 0. अगेन हमने प्लस माइनस 0, देन on this phase charge will be 3 microcoulomb. तो we can calculate by this result. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्लास में we will start कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके.